کہے صحابی کہ قالا نبی کے بارے میں کہے، نبی کے بارے میں بھی ہے، صحابی کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے. قالا کہے صحابی کہے کہ قال رسول اللہ، سمعت رسول اللہ، میں نے سنا نبی یہ کہہ رہے تھے، نبی یہ فرما رہے تھے، دونوں ایک ہی ہیں. ابھی مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہاں پر علی اکبر صاحب سے میں نے سنا، پھر وہ کہانی میں بتا دوں، تو یہ سنی ہوئی کہانی اس کی ہے جو انہوں نے بتایا ہے نا، میں بتا رہا ہوں. جی یا میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ کہا، علی نے یہ کہا اور میں بتا دوں، تو یہ کہنے والا حضرت علی کی بات ہے یا علی جو کیا نام ہے ان کا، علی اکبر کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں نا، دونوں ایک ہی ہیں. لیکن ان کو ناچنے کا شوق ہے اور اپنی بات منوانے کا شوق ہے، تو جب شوق نکالنا ہو تو پھر اس طرح کی ذلتیں ہوں گی اور ذلیل ہوں گے پورے بروڑوں پہ، اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں نچلیا. اگر یہ بات وہ نہ کرتے تو ذلیل نہیں ہوتے، یہ بات انہوں نے کی ہے تب تو ذلیل ہو رہے ہیں. ہم نے اسی وقت ان کو لگام دیا کہ تم زیادتی کر رہے ہو، اور وہ جو خاتون تھی مشرکہ تھی، اس وقت جو ہے انہوں نے چلانا شروع کر دیا، یہ مشرکہ تھی مشرکہ تھی مشرکہ تھی. آج ان کو پتا پڑ گیا کہ واقعتاً وہ مشرکہ تھی. تو اس طرح کی حرکتیں کریں گے تب تو یہ چلائیں گے. جی پیر صاحب السلام علیکم. پیر صاحب میں بھی کبھی کبھی آپ کی براٹ پہ جاتا ہوں، یہ بھی ساری دوسری براٹوں پہ جاتے ہیں. آج کیا تکلیف ہوگی آپ میری براٹ پہ آئے ہو؟ بولتا ہے ادھر مرزائیوں کی براٹ پہ جا کے بیٹھا ہوا تھا. آپ کو منع ہے کیا کہ آپ کو کسی نے منع کیا ہوا نہ جاؤ؟ یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کیونکہ باپ کا راج ہے کہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ. کسی کے باپ کا راج نہیں ہے، میں جہاں جانا چاہوں جاؤں. تمہارے ساتھ بیٹھ کے بکواس کرتا رہوں کیوں؟ کیونکہ تم لوگ ہو ہی بکواس. یہ کہتا ہے ہم نے صلاح کر لیا، نام نہیں لیا. ہم نے کس کا نام لیا؟ ہم ایک حدیث پہ بات کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں نلقینہ آیا ہے، کپڑے ہم پھینک دیں گے، بکیر دیں گے، اور واقعتاً یہی مطلب ہے. اس پہ بات کر رہے تھے. ہم نے یہاں پر کسی بھی نچنیا کا نام نہیں لیا. حدیث بیان نہ کریں، حدیث میں کیا ہے وہ بھی نہ، اس میں تمہارا نام آ جائے گا. ہم نے اگر کوئی آپ پہ کوئی غلط بات کی، آپ کو کوئی گالی دی، کوئی بات کیا تو ٹھیک ہے بھئی. آپ پہ ہم تھوکنا نہیں چاہتے، لعنت بھی بھیجنا نہیں چاہتے، آپ مذمت کے بھی قابل نہیں ہو. ہم کسی بروڑ پہ کیا بات کرتے ہیں، کسی حدیث کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، تمہیں کیوں مرچی لگ جاتی ہے بھائی؟ پتا پڑا تم چور ہو اس لیے تمہیں مرچی لگی، ورنہ ہمیں کیوں نہیں لگی؟ ہم نے چوری کی ہی نہیں. حدیث ہے نلقینہ. دوسری جگہ ہے وہ جرد والی کے اتار دیں گے، بالکل ہے، وہ بھی ہم مانتے ہیں. اس کی تطبیق ہم ایسی کریں گے جس پہ کوئی حرف نہ آئے حضرت علی پہ. لیکن تم لوگ ہو ہی نچنیا، ناچ ناچ کے اپنی بات ثابت کرنا چاہتے ہو. کیا حضرت علی کے شان ہے یہ بات جو کر رہے ہو؟ یہی تو گستاخی ہے، یہی تو شاطمیت ہے. نہیں پیر سکانی صاحب، ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تھی مشرکہ تھی، اور ام رباب تو مشرکہ نہیں ہے. بھائی یہ بات بنتی نہیں، یہ بات ہی نہیں بنتی. وہاں پر بات یہ ہے کہ قالا کہہ رہا ہے، بیان کرنے والا کون ہے؟ کوئی صحابی ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا ہے. جی دوسرا کہہ رہا کہ میں نے سنا کس سے؟ حضرت علی کی باتیں بتا رہے کہ جو سنا ہے. تو حدیثیں بالمعنی بھی ہوتی ہیں اور باللفظ بھی ہوتی ہیں. جب دو الفاظ آئیں، کچھ اور، تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ بالمعنی بات بیان کی گئی ہے، بالمعنی. وہاں صرف اتنا ہے کہ ہم تمہاری تفتیش کر دیں گے بس. حالانکہ اس حدیث میں جو جرد والی بات ہے لکھا ہوا ہے تلاشی کے لیے کہا گیا. ایک دھمکی تھی تلاشی کے لیے، بس اتنی سی بات ہے. اس حدیث میں بھی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تلاشی کے لیے کہا گیا، اتنی سی بات. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، یہ سنت ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ سنت ہے، کہتے ہیں ہم عمل کریں گے. تو یہ لوگوں نے غلطی کی ہے، یہ ان کی غلطی ہے. اگر اس پہ وہ ناچتے ہیں، اسلام سے کسی کو خارج کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، بھائی تم لوگوں نے غلطی کی ہے، یہ تم لوگوں کی غلطی ہے. شرط لگا کے تم لوگوں نے غلطی کی، یہ بات کہہ کے بھائی تم لوگوں نے غلطی کی، یہ تم لوگوں کی غلطی ہے. اپنی غلطی مانو، اچھا ہے، نہیں مانو اسی طرح رسوا ہوتے رہو. ہمیں کیا ہے، رسوائی تمہاری مقدر میں ہے ہر صورت، جب تک حق کی طرف نہیں آؤ گے.
हक की तरफ तुम्हें आना होगा, शर्तें मत लगाओ, पूरे मुसलमानों को गालियां मत पढ़ाओ। बिल्कुल, वो आप ठीक है निस्कानी साहब, वो अगर गुस्ताखियाँ करते रहेंगे इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम की, सहाबा की, रसूल पाक की, कुरान पाक की, तो हम अहमदी सच्चे मुसलमान बैठे हैं दिफा करने के लिए इस्लाम का। नहीं, तुम्हारा कोई नहीं बनता है, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है, क्यों तुम्हारे पास शातिमियत का कोई सजा नहीं है भाई। साहब सुन लें ना, मैं आपकी बात, आपको बड़ा गुस्सा था आपकी बात में बोले, सुन लें पूरी बात। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी सच्चे मुसलमान कुरान पाक, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की गैरत के लिए जहाँ बैठे हैं, और हम दिफा करते रहेंगे। जो भी कोई इसकी गुस्ताखी करेगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो रसवा होते रहेंगे, और हम अहमदी मुसलमानों के हाथों ये रसवा होते रहेंगे इंशाल्लाह, अगर जहाँ जहाँ ये गुस्ताखी करेंगे तो। अली अकबर साहब, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अव्वल यह कि आप मुसलमान नहीं हो, दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ गुस्ताखी की कोई सजा नहीं है। जी ठीक है। हाँ, आप इस वक्त क्यों कर रहे हैं? सारी बातें, मुसलमान आपके दुश्मन हैं, आप मुसलमानों के दुश्मन हो, आप जो है इस तरह की हरकत जरूर करेंगे, कोई मोहब्बत के लिए नहीं कर रहे। आप गलत आप ना करें, आप खुद को अहले हदीस को कह के, और खुद आप हदीसों के मुनकर हो रहे हैं, और हमें गैर मुस्लिम कह के ना। कौन से हदीस? अली अकबर साहब केड़ी बहस लेके अली बैठ अकबर गए। भाई, उन्होंने खुदा बड़ी दा नाम। खूबसूरत उसी हदीस की जो बात की है ना, उसकी तो उन्होंने कहा है कि उसमें उसकी ऐसी बात करनी है जिससे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की, यानी कि वो आप बात ना करें जिससे गुस्ताखी की बो आती है। और वो जो आमर नज़ीर साहब ने बात की है उसमें तो वाज़े तौर पर गुस्ताखी की बात हो रही है। तो ये वो बात समझाना और चाह रहे इसमें हैं। कोई अहमदी गैर अहमदी की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं हजरत अली की, बस बात अली अकबर साहब इतनी रखें, अहमदी गैर अहमदी बीच में ना डाले, उस तरफ ना लेके जाएं बात को। हजरत अली की शान में गुस्ताखी हुई है, हदीस को गलत कोट किया गया है एक औरत को गाली निकालने के लिए, बस इतनी सी बात रखें, दैट्स इट। पीर साहब को अपना मौकफ देने दें, हम अपना दें, इसमें अहमदी गैर अहमदी ना बीच में लाएं। गलत कर जाते हैं ना, इसलिए चल ठीक। हदीस गलत कोट हुआ है, बिल्कुल गलत कोट हुआ है। हदीस ये जो है बिल लफ्ज नहीं है बल्कि बिल मानी है, और मानी इनका यही है कि वहाँ उनको धमकी दे दी गई कि कपड़े दे दो हमें खत। उनको जो है नंगा करना ये किसी की सुन्नत नहीं है। ये जो भी कहता है ये बात, ये एक नचनिया ही कह सकता है, जो नाच नाच के जो वे पैदा हुए हैं, ये वो कर सकते हैं। कोई एक शरीफ लफ्ज इंसान नहीं कर सकता जी, नचनिया ही कर सकता है, ज़िया जैसा नचनिया। तुम्हारा क्या काम है हदीसों से? तुम्हारा काम है, एक पीर था हगता नहीं था, एक पीर था सोता नहीं था, एक पीर था बोलता नहीं था, एक पीर था जो है उड़ता रहता था, एक पीर था जो है वो नंगा फिरता था, एक पीर था शादी नहीं करता था, शादी की 20 साल तक जो है अपने शेख के बेटी से उसको छुआ नहीं। तुम्हारा तो ये काम है, तुम्हारा क्या काम है हदीसों से? जाल के बच्चे। पीर साहब, यही बात जो अभी आपने समझाई है ना, मैं कितने दिनों से कह रहा था कि उलमा जो है ना उनसे राय लेनी चाहिए, और आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि उसमें उन्होंने गुस्ताखी की है, वो बेअदबी, उसमें बेअदबी की बो आती है। और ये बात बहुत कम लोग करते हैं, हालांकि इसमें कबायलीज़म नहीं होना चाहिए कि कबायलियत की वजह से इसकी बात हक की ना की जाए, और आपने बहुत ज़बरदस्त हक की बात की है, जज़ाकल्लाह। और मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्यों नहीं आपसे फ़ायदा उठाते ये हदीस के इल्म में, और गलत बात के ऊपर भी डट जाते हैं। हालांकि इंसान को अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, इंसाफ की बात करें। मेरा उम्मे साहबा भी आ गई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सुन रही हूँ, आप बात करें। नहीं मौलवी साहब, आप मेरे, क्योंकि मैं आपको सादे मोहतरम मानता हूँ, एक डंडा, एक पग और 2 किलो मिठाई का डब्बा भी मैं भेजना चाहता हूँ। देखें, अभी पीर साहब उधर गए थे, उनको नीचे उतार के तो ऊपर से उन्हें कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो गई है कि मेरी उम्मत में जो कज़ाब दज्जाल, ये पीर सकानी कज़ाब है, दज्जाल है। ये तो ये आपकी वाली बात ठीक है, हम खुद अक्सर पीर साहब को कहते हैं कि ये चीज़ हमें समझा दें, ठीक है। मैं ना अहमद साहब, पता नहीं, बाद अहमदी लोग मुझसे नाराज़ भी हैं, मुझे गालियां भी देते हैं। मैं पीर साहब को बड़े लंबे अरसे से जानता हूं, और मैं इनका वो क्या कहते हैं मुतासर हूं, कह लें आप, क्योंकि ये बात दो टोक करते हैं, और जो हक की बात है वो कह देते हैं। और
बेशक आपको पसंद आए या ना आए। तो ये जो बात है, आप मुझे और बंदा को ला के दिखाएं जो हक की बात समझाए। इतने दिनों के बाद पीर साहब ने पब्लिक में ये बात की है। पहले ये पीर साहब ने बात नहीं की कि ये इसमें गुस्ताखी की बू आती है, हमेशा उनको इनडायरेक्टली समझाते रहे हैं। मैंने इनकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऑडियो सुनी है, लेकिन वो अब मैं रज़ा रसूल को तो मानते ही नहीं हूँ। वो किसी किस्म का आलम शालम जिस तरह की वो गुफ्तगू करता है, तो वो जो भी बकवास करे या पीर साहब के बारे में बात करे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने तो उसको फॉलो भी नहीं करता, किसी जगह पे हो तो बात भी करना पसंद नहीं करता, उसका मामला ही डिफरेंट है। नहीं, अभी वो कह रहा कि मुफ्ती मुबशर साहब को दरमियान में रख के हमने सुलह करवाई थी, सुलह हो गई थी। मतलब ये सुलह के बाद आपको गलत बात करें तो बेशक आपका ईमान भी खराब हो, तो अगला बंदा हक सच की क्यों ना बात करे। सुलह हो गई तो इसका क्या मतलब है? हक सच छोड़ दें, आप जो कहें आपके पीछे बात माननी शुरू कर दें, आप गलत भी कहें उसको सही कहना शुरू कर दें। जहालत है ना, यही तो बात है जो कि मुझे गुस्सा दिलाती है इन लोगों की, कि आप मजहबी फोरम पे बैठे हुए हैं और आप बुनियादी तौर पर हक और सच नहीं बयान कर सकते, और फिर समझते हैं कि आप जमात अहमदिया को नुकसान पहुंचाएंगे। आपने अगर नुकसान पहुंचाना है तो अपने किरदार बुलंद करें, अपने करैक्टर को बयान करें, उसमें किसी फर्द के लिए अपने ज़मीर को ना बेचें। तो वो तो अल्लाह ताला की पनाह। बस नीचे पीर स्कानी साहब के हक में लोग जो मैसेज कर रहे थे उन्होंने मैसेज ही म्यूट कर दिए हैं कि कितनों को ब्लॉक करेंगे, हम अपने खिलाफ क्यों करें लोगों को। उन नीचे लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिद स्कानी ठीक बात कर रहा है, वो माइक सारे मैसेज ही बंद कर दिए इन्होंने। और इससे पता चला है देर आए दुरुस्त आए। उम्मे साहबा पीर स्कानी ने मान लिया है कि इसने गलत कोट की है हदीस। मुबारक हो आपको, हमको भी, हम भी पीर स्कानी साहब के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह हक सच के। देखिए, मैंने आपको उस वक्त भी इस बात की वजाहत की थी कि पीर साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया है, और कुरान करीम पे तो बहुत सारे लोग तफसीर भी लिखते भी हैं, जानते भी हैं और समझते भी हैं। अहदीस का इल्म जो है ना बहुत कम लोगों के पास रहा। तो अल्लाह ताला ने पीर साहब को बहुत नवाजा है इन चीज़ से। तो मुसलमान को कदर करनी चाहिए, और हर मकतबा फ़िक्र के मतलब किसी भी मौजू के ऊपर पीर साहब के पास उसका बड़ा माकूल जो है और बड़ी तहम्मुल से बात करते हैं। असल में मैं पीर साहब को यही बात समझाना चाह रही थी कि जो हदीस है तो वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उस हदीस में कोई ऐसी सुन्नत या ऐसा कॉल नहीं मिलता कि उसकी तबलीग की हो या उसके बारे में आगे कुछ कहा हो, बेशक उसके माने गलत ही हो। तो जब हम सहाबा की बात करते हैं, जब हम अपने बड़ों की बात करते हैं, इवन वालिदैन की भी बात करें, तो हमें हमारे लहजे में एक बड़े का एहतराम होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे लहजे से पता चलना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से बात की गई, तो मैंने इसकी एग्जांपल भी पहले भी दी थी कि एक शख्स कहता है कि आप अपना मुंह बंद करें, एक बंदा कहता है कि प्लीज़ आप बात ना करें, और एक बंदा कहता है कि अपनी भौंक बंद कर। बातें सबका मतलब एक है, लेकिन आपको उसको एक तराजू में एक बराबर नहीं तोल सकते। तो अल्फाजों का चुनाव, उनकी अदायगी जो है वो बहुत माने रखती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पीर साहब जो है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको हक सच कहने की तौफीक दी, और आप देखें कि लोग उनके भी बड़े मुखालफत मतलब करते हैं, उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जाता है ना, इन लोगों की वजह से करते हैं, ठीक है। अदरवाइज लोगों को अगर समझ हो, दोले शाह के चूहे ना बन के बैठे हैं, तो लोगों को पता सारा लग रहा होता है, बस पता नहीं उनको खुदा मान लिया है या क्या मान लिया है, समझ नहीं आती हमें भी। तो खैर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो और मुबशर रज़ा कादरी और बाकी सारे दोस्तों से अब मैं जा चाहता हूँ, उस्ताद मोहतरम मौलवी साहब से भी। फिर थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा बिजी होने लगा हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जी। ठीक है अहमद जट साहब। और प्लीज रज़ा साहब आप इधर ये तो बात करें। हाँ जी
میں تو ابھی بھی میں دیکھیں یہ بات تو پہلے دن سے جس دن سے یہ خطبہ سنا رہے ہیں وہ جب یہ بات ہوئی تو فٹافٹ حضور کا خطبہ لے اس میں بڑے واضح الفاظ ہیں جو کہ اپنا پیر صاحب نے ابھی بیان کر دیے. حضور نے وہ بریکٹ صرف نہیں کہا کہ بریکٹ، باقی تو حضور نے بڑا واضح اس میں بھی کہا ہے کہ یہ حدیث انہوں نے پڑھی ہے، ساتھ انہوں نے کہا کہ تلاشی کے لیے، اور یہ بالکل تلاشی کے لیے ایک کام تھا کہ اگر تم تلاشی میں ہمیں اگر تم لیٹر نہیں دو گی تو تلاشی ہمیں لینی پڑے گی. اس میں کہیں بھی سزا کے طور پہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھی یہ بات. اور دوسرا وہ ایک مشرکہ عورت کے بارے میں بات تھی. تو یہ ساری باتیں جو ان سی ہیں، اور اس کو اگر انہوں نے گالی نکالی ام صاحبہ کو، اور اس گالی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بکواس کی، تو اب شکر ہے لوگوں کو اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. میں تو آج خاص طور پہ زاہد اسکانی صاحب کی یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے، میں تو اس کی بڑی پذیرائی کرتا ہوں اور بڑا میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ام صاحبہ تو خیر پہلے دن سے ہی اس کو سمجھ رہی تھیں، اس کے خلاف بات کر رہی تھیں، لیکن آج زاہد اسکانی صاحب نے بات کی، میں اس کی بڑی پذیرائی کرتا ہوں. یہ کہا تھا میرے مولوی صاحب دیجیے گا، یہ مرزا عثمان صاحب نیچے کچھ لکھ کے پوچھ رہے تھے سر، ان کا نام عامر نذیر ہے، ان کی آئی ڈی کا نام بھی عامر نذیر ہے، اور یہ مختلف براڈ پہ بیٹھتے ہیں، اپنے ہی جو ان کے پیروکار ہیں ان کی براڈ پہ بیٹھتے ہیں، اپنی براڈ بھی چلاتے ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہ مختلف براڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے جا کر عامر نذیر کی آئی ڈی پہ. ام صاحبہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور زید اسکانی صاحب سے بھی، اگر دونوں میں سے جو بھی پسند کرے ان کا جواب اس کا جواب دینا. بھائی اگر جواب آتا ہوگا تو کوشش کریں گے، اگر نہ جی آتا جی ہوا تو جی معذرت کر لیں گے. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے بہن. بات یہ ہے کہ ہلو حضرت السلام علیکم سب کو. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ مرزا صاحب. بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مخبر صادق نے یہ خبر دی، جی، اور وہ مخبر صادق تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جائیں اس کے پاس ایک خط ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ام رواب کا یہ کام اس کے ساتھ کریں، یہ قول ہے حضرت علی نعوذ باللہ، تو اس کو کس نے خبر دی یہ بات کرنے کی، یا یہ قول منسوب کرنے کی کہ یہاں پہ ایک ہستی کی تو گستاخی نہیں ہے، یہاں پہ دو ہستیوں کی ہو رہی ہے، ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہاں پہ خبر دینے والا مخبر صادق ہے اور خبر لینے والا حضرت علی ہے. اس کو کس نے خبر دی ہے کہ یہ کام کرو جا کے؟ جی یہ ہے میری. جی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور اسی کے اوپر میں نے پیر صاحب سے یہ درخواست بھی کی تھی کہ پیر صاحب یہ کس طرح اتھارٹی تھی اس کے پاس، اور اس نے اپنی زبان سے یہ اقرار کیا کہ میں نے ام رباب کے کپڑے اتار دیے، میں نے اس کو بزت کر دیا. اب جب اس نے میرا جرم ثابت نہیں کیا، اس کو خبر دی کس نے تھی، یہ اس کو الہام ہوا تھا، اس نے کس بنا پر یہ سب کچھ کیا، اور کیا اس نے مجھے مورد الزام ٹھہرانے کے بعد یہ کیا تھا؟ اس کے پاس کوئی اتھارٹی تھی؟ یہ بات آپ سے پہلے میں پیر صاحب سے کر چکی ہوں. تو آپ نے جو سوال اٹھایا بالکل ٹھیک اٹھایا. جزاک اللہ بہن، اللہ آپ کو عزت دے. اختلافات اپنی جگہ پہ علمی اختلافات ہوتے ہیں، وہ 100 دفعہ ہوں گے، لیکن جہاں تک کسی عورت کی عزت کا تعلق ہے، وہ کوئی بھی ہو، میرے لیے مسلمان ہو یا غیر مسلم عورت ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی عزت کی بات کی ہے وہاں پہ ہم ضرور عزت کریں گے. دیکھیں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، یہ 2 سال سے مسلسل کر رہے ہیں، لیکن میری برداشت اس وقت مطلب جو ہے اس کا پیمانہ لبریز ہوا ہے جب حضرت علی کے اوپر بات ہوئی اور دوسرا میرے والد صاحب کے اوپر بات ہوئی. میں نے اپنے بچوں کی برداشت کی، اپنی بہنوں کی برداشت کی، میں نے اپنی ذات کے اوپر برداشت کیا، اور میں یہ سوچ کر کہ یہ جاہل ہے، جو ایک عامر نذیر جیسے شخص، ایک ٹرک ڈرائیور جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، جس کی بات کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، اس کو یہ علامہ مانتے ہیں تو اس قوم کا کیا حال ہوگا. تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جاہل سمجھتی رہی، لیکن بعض ٹائم جاہل کے منہ کے اوپر تماچا مارنا بہت ضروری ہوتا ہے،
اور میری 2 سال کی جو برداشت تھی وہ ان 2 وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ میرا پیمانہ لبریز ہوا، کہ ایک حضرت علی کرم وجہ اللہ کی بنا پر، اور دوسرا جو تھا وہ میرے والد صاحب. یہ لوگ میرے والد صاحب کی جوتی کے برابر نہیں ہیں. میرے والد صاحب 71 کی وار میں جب واپس آئی ہیں تو انہوں نے ایئر فورس میں تھے، تو انہوں نے منت مانگی تھی کہ وہ دین کی خدمت کریں گے. انہوں نے اپنی پوری جوانی، مطلب وہ آفس سے آتے اپنا یونیفارم اتارتے، ماڈل ٹاؤن لاہور اور ٹاؤن شپ کے ہزاروں کی تعداد ہمارے گھر سے بچے پڑھ کر گئے اور کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا. میرے والد صاحب نے سیکورٹی میں مطلب بھرتیاں کی، میرے والد صاحب نے سیکورٹی فورس بنائی، لیکن ایک بندہ گاؤں میں خط لکھ کے کہ جن کے بچے پڑھے لکھے ہیں یا کوئی اچھی گیم کھیلتے ہیں وہ آئیں. ٹاؤن شپ کے کتنی لڑکیاں سیکورٹی میں کروائی، لیکن کسی سے 1 مٹھائی کا ڈبہ، میرے پہ خدا کی لعنت ہو اگر میں آپ سے غلط بیانی کر رہی ہوں، آپ ٹاؤن شپ جائیں میرے والد صاحب کا پوچھیں. لیکن انہوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کی اولادوں کو معاف نہیں کیا، حضرت علی کو معاف نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کو ان کی زبان میں بات کرنی پڑے گی، یہ انسانوں کی زبان سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے پاس بیٹھ کر جتنا یہ گند بولتی ہے، جس طرح یہ 50 آدمی گندی باتیں کرتے ہیں اپنی بہنوں کے سامنے، یہ جو کچھ بکواس کرتے ہیں اپنی ماں کے سامنے، مائیں پتہ نہیں کیا کرتی ہیں ان کی، جو اتنا گند پیدا کیا انہوں نے. جی 1 منٹ دیجیے گا صرف. اس مرزا عثمان صاحب جی آپ کچھ بولنے لگے تھے سر، تاکہ وہ جو مہمان بیٹھے ان کو بھی لینے. مرزا صاحب مائک کھولیے گا. ہیلو السلام علیکم سب بھائیوں کو. وعلیکم السلام. جی سر آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ سوری وہ اندر بات دوسری شروع ہو گئی تھی. کوئی بات نہیں، یہ میری بہن نے اچھی باتیں کی ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ امن نذیر ہے، یہ قادیانی ہے؟ جواب دیں ام صاحبہ. پتہ نہیں جی، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون ہے. آپ نا مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. جی میں پیر جواب صاحب دوں گا آپ آپ جی کو. جی عامر نذیر صاحب مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. ہمارا ان سے ان کی جو ہے جو کچھ غلطیاں ہیں ان پہ ان کو گرفت کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو گئے ہیں، اور ہماری کچھ ان کو لگتا ہے کہ ان کی غلطیاں ہیں، ان کو دیکھ کر وہ ناراض ہو گئے. وہ مسلمان ہے. جی پیر صاحب میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ میرے سب بڑے ہیں، آپ کی میں بگ رسپیکٹ ہے. پیر صاحب میں یہ بات کرتا ہوں، یہ جو بندہ امن نذیر ہے یہ پاکستان ہے یا آؤٹ آف کنٹری میں ہے؟ اگر پاکستان ہے تو کس جگہ پہ ہے؟ اس کی یہ جرت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر دو، ایک بہن کو ایک بیٹی کو گالیاں نکالنا، اتنی ضرورت اس اچھا، کی؟ یہ کہاں کا مسلمان ہے پیر صاحب؟ آپ کہاں ہیں؟ پیر صاحب آپ مجھے کہاں چھوڑ کے رہے ہیں؟ ہیں، میں جہاں مرضی ہوں، میں دنیا کے کسی نہ کسی کونے پہ ہوں نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے علی کی شان کی گستاخی کوئی کرتے پیر صاحب؟ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. میں آپ اور کون ہیں؟ بہن کو آپ گالیاں احمدی ہیں؟ نکال لے. آپ احمدی ہیں بھائی؟ میں احمدی نہیں. نہیں میں مسلمان ہوں بھائی، میں احمدی نہیں ہوں. مسلمان کون سے مسلمان ہیں؟ جی کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ اور رسول کو ماننے والے، اللہ اور اللہ کے صحابہ رسول کو کو ماننے ماننے والے والے. مسلمان. تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ صحابہ کو کو مانتے والے مسلمان ہیں. بھائی بات یہ ہے، جی پیر صاحب، بات یہ ہے کہ جذبات سے جس طرح سے وہ جذباتی ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں اور آپ ہی مسلمان ہیں. جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ بھی جذبات میں ایک بیان دے کر اب اس پہ جو ہے مزید گڈھے میں جا رہے ہیں. آپ جذبات سے بات مت کیجئے، بات آپ نرمی سے کیجئے. میں مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، اور عامر نذیر بھی مسلمان ہے. ہم سے بڑا کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا. مجھ سے یہی آپ کا دعویٰ ہوگا، یہی عامر کا دعویٰ ہوگا. تو مسلمان ہم سب ہیں. ان سے ہو گئی ہے ایک غلطی، اس غلطی کو ماننے کے بجائے وہ کر رہے ہیں سرکشی. جب سرکشی کر رہے ہیں لٹ مارے جا رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں.
पीर साहब तो मैं आप ऐसा मत आपकी करें माजरत कि चाहता हूँ, मैं आपसे हमारे नबी, हमारा हमारा अली, हमारा ये नहीं, आप पीर साहब मैं आपसे साथ ये देखें, अगर कोई हमारे इस्लाम में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, उस पर फतवे जारी कर दिए जाते हैं, उस पर क्या क्या कुछ नहीं किया जाता है। कभी हनफी का फतवा, कभी बरेलवी का फतवा, कभी शियों का फतवा, कभी वहाबियों का फतवा, ये सब फतवे जारी किए जाते हैं। और एक बंदा बैठ के हज़रत अली की इतनी गुस्ताखी करे और अच्छा वो अली भी भाई, आप माफ़ी ना मांगे। म्यूट तो ना करें, हम मुसलमान बात कर रहे हैं, आप म्यूट कर रहे हो। नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको भी मसला होता है कि कोई बंदा वो बात कर रहा है तो आप अंदर बोल पड़ते हैं, उनको बात करने दे, जब मुकम्मल कर नहीं, ले तो बोलिएगा ना। दो मुसलमान बात कर रहे हैं, आपको क्या है इसमें, आपको क्या है भाई? उस वक्त भी ऐसे ही हो रहा था ना, एक मुसलमान की बात हो रही है तो आप कहते थे कि बात करने देना, तो इसलिए मुसलमान नहीं भाईजान, अल्फाज सही अदा करें, दो मुसलमान। ओके, आप जरा उनको बात करने दीजिए, फिर आप बोलिए। जी बिल्कुल, बात मुकम्मल। जी मिर्जा साहब आप बोले। पीर साहब मैं एक बात की तरफ आपकी सिर्फ आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी की जुबान में लुकनत हो तो उसका मजाक उड़ाना एक मुसलमान को ज़ेब देता है? वो देखो, मुसलमानों में ये बात चलती है, थोड़े से मजाक भी हो, वो हार्ड वाली गुफ्तगू ना हो। ठीक है, ये हर आदमी का अपना एक समझ है कि ये देखो मजाक उड़ा रहा है, नहीं, बात थोड़ा सा लाइट हो। ओके फिर लाइट हो। ओके वो कि जी ने फरमाया ना कि उनसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं, तो हो सकता है समझते हैं। जी मुसलमान नहीं, आप गलत कह रहे हैं अली भाई, मुसलमान। ओके जी मिर्जा साहब बोलिए सर। और साथ दूसरी बात ये है, तो फिर जो यहूदी जो काफर हैं वो तो हमारी बरोडों को देख के तो वो कहते हैं कि ना चंगा होया ए वेख्या मुसलमान ही एक दूजे ने बुरा भला कहन दिया। तो फिर क्यों कह रहे हैं आप आमिर नजीर को, क्यों गलत बुरा भला कह रहे हैं आमिर नजीर को? जब मुसलमान वो भी है, मुसलमान आप भी है भाई, जब लड़ाई होती है तो बुरा भला कहा जाता है, यहूदी कहे या कोई और कहे भाई, जब लड़ाई हो गई दो मुसलमानों में तो एक दूसरे को बुरा भला कहा ही जाता है, इतनी सी बात है। पीर साहब, यहाँ पर एक सवाल है कि मुफ्ती मुबशर साहब ने सूरत फातिहा का तर्जुमा किया तो वो मुफ्ती ही रहे। जी हमारे लोग जो गंद करते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी मुसलमान ही रहे। जी वो शातबियत करके फिर भी मुसलमान ही रहे। देखिए, तो रही बात मुसलमान जो है किसी कसौटी पे मतलब परखा जाता है, या जो गंद करे या जो कुछ भी करे वो मुसलमान ही है? बात यह है, मुफ्ती मुबशर साहब की जो आप बात कर रहे हैं जी, मुफ्ती मुबशर साहब का अपना एक तर्ज अमल है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे बेहतर कोई भी नहीं। उनका एक तर्ज अमल है, हो सकता है उस तर्ज अमल से आपको इख्तिलाफ हो। आपके बारे में भी ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, एक रात जो है किसी ने मुझे ऑडियो दे दी कि देखो ये मुफ्ती क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई, मेरे अपना ही भाई, प्यारे भाई, आप मुफ्ती की बात सुने, वो तो सही बात कर रहे हैं। वो उमर अबाब साहिबा के बारे में ये कह रहे हैं कि वो हमारी बहन है, आप छोड़ें उनको, क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए हैं? पीर साहब, तो मुफ्ती ने बिल्कुल एक बेहतरीन बात की है, जितना मैंने उनको सुना है। जी पीर साहब, आपने इतना नहीं सुना जितना मुफ्ती साहब को मैंने सुना है। सबसे पहले तो सूरत फातिहा भी आपने उनकी नहीं सुनी हुई, आपने मदीना बैठ के जो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं वो भी नहीं आपने शायद देखी हुई। और पीर साहब नहीं, वो वीडियो मैंने देखी है। प्रिंसेस साहिबा आई, ये अल्लामा मोमिन ह्यूमैनिटी साहब को थोड़ा उठाइए, उनसे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। ये हमारे बड़े हैं, कबला को उठाइए, नाराज ना हो। कबला ऊपर आएंगे साहब, इसने कजाब जज्जाल, ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूँ, ये ना करें। अल्लामा साहब ऊपर आइए। अगर इसको मैं उठा लूं, ये गाली निकालेगा पीर साहब, मैं इसको नीचे फेंक दूंगा, ठीक है? गाली निकालेगा तो जाहिर बात है, आपका हक है। आपके कहने पे उठा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको उठाना नहीं चाहता। नहीं, वो मैं ही बात करूंगा। पीर साहब,
जी ये एक कज्जाब एक दज्जाल, घंटा कज्जाब दज्जाल, कज्जाब मुबशर दज्जाल। अपनी ब्रॉड पर मुझे गालियां निकलवाया करते थे, एक एक घंटा मुसलसल। आप हमारी जी बहन पीर हैं, मैं साहब, इनसे माजरत खा हूँ, जी पीर माजरत साहब खा मुझे हूँ मैं। नीचे आवाज नहीं थी आ रही, आप क्या कह रहे थे? मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी, मैं ये अभी कह आ रहा रही है। था क़िबला मोमिन साहब को उठाइए, मोमिन साहब से बात कर लेते हैं, हमारे बड़े हैं। मैंने ये आपको देखा और मुझे दिल में एक आपके लिए, आप जी यकीन पीर करें, साहब, इतना मेरा मैं तो एक बात करना चाहता हूँ, आप मुसलमानों को बेइज्जत क्यों करवा रहे हैं? क्यों मुसलमानों के ही पीछे पड़े हुए हैं? मुसलमानों को नहीं, मुसलमान को, मुसलमान वो एक दूसरे को थोड़ा सा देखो, जो भी आप कहते हैं, मुसलमान ही आपके दुश्मन है। भाई मुसलमान नहीं, मुसलमान। हाँ, आप उनका नाम बिगाड़ते हो जो हमेशा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देते हैं, उनके लिए सारी जिंदगी वक्फ करते हैं, उनका नाम बिगाड़ते हो बस। हमने किसका नाम नहीं बिगाड़ा, मैंने आपको देखें अल्लामा क़िबला मोमिन का नाम बिगाड़ा? बताइए। पीर साहब, आप ये देखें, मुसलमानों के खिलाफ जो बोलते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या मिलता है आपको? कभी जिंदगी में आप पेश नहीं कर सकते कि मुसलमान के खिलाफ मैंने बोला है। हाँ, मुसलमान के खिलाफ बोला होगा, मुसलमान, क्योंकि हम नहीं पीर मुसलमान हैं साहब, ना भाई। अभी आपका अगर मैं बयान पिछला देखूं, ठीक है, जी अभी तो आपको रिकॉर्ड। वो जो कुछ हुआ, वो मुझे नहीं जी पता किस चीज का गुस्सा है। पहले आप बिल्कुल ठीक हो गए थे, तसल्ली थी आपकी, अब आप कह रहे हैं कि जी वो वहां से भी गलती है, वहां से भी गलती है। क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से गलती है, वहां से गलती है, जबकि सिर्फ अपनी इज्जत के लिए? पीर साहब, आपने अल्लाह ताला को जान नहीं देनी क्या? मुसलमान को जान किसको देना है, आप बताइए, आपको किसने इनको जान जो देना दुख है? सुना रहे हैं पीर साहब, आप इनको जो दुख सुना रहे हैं, ठीक है, क्या ये आपको लगता है कि ये इन फासकों को दुख सुनाना जायज है? अच्छा, बात आपको यह जो है मुसलमान मेरे, लगता है, आप अपना एक ग्रुप बनाएं, उसमें बात करें। आपके अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है उससे आप बात करें, जो करना चाहते हैं। इन कादियानियों में बैठकर जब बात करते हैं तो क्या मिलता है आपको, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? अगर खामोश रहोगे तो ज़रूर बताऊंगा क़िबला, लेकिन अगर खामोश जी नहीं बताएं। रहोगे तो कैसे बताऊंगा? देखें, मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, ये देखें आप, ये कह रहे हैं कि आमिर ने गुस्ताखी की। मैंने उनको जवाब दिया कि आमिर साहब की ये गुस्ताखी मैं तो नहीं समझता उन्होंने गुस्ताखी की है, बल्कि इतना ज़रूर है कि एक खातून के बारे में उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये मेरा देखिए राय था। पीर साहब, उन्होंने, ये अब आप सुन तो लो, इन कादियानियों मुसलमान को सुन लो, बताएंगे, इन क़िबला कादियानियों सुन को लो, आके आपको जरूरत है, समझते हैं कि क़िबला जरूरत है सुन लो, इनको बताने क़िबला की? सुन लो, क़िबला सुन तो लो, ये मान क़िबला गया कि सुन। मिर्जा साहब के बारे में ये वो कज़ाब था, दजाल था, अभी आप नीचे जाना इन्होंने चाहते माने हैं आज इसलिए, तक? नीचे जाना चाहते हैं इसलिए आप गलत कर रहे हैं ना। जो मसला है उसको सुन लो। जब मुझसे उन्होंने पूछा, मेरा जो ख्याल था, जो मैं सही समझा, मैंने वही बात की। फिर मैंने उस हदीस की बात की जिसमें अल्फाज ये हैं, नुल्क़ियन सियाबा, वहाँ ये बात नहीं है कि तुम्हारे कपड़े उतारेंगे, बल्कि कपड़े फेंक देंगे, बखेर देंगे तलाशी के लिए। मैंने इतनी सी बात की, उससे ऊपर मैंने कुछ नहीं कहा। ये आप मुझे तो आप हाँ, बता रहे हो पीर साहब, जिनको आप बता रहे हो उनका मिर्जा क्या लिखता है? एक मिनट भाई, एक मिनट। अब होता क्या है मेरे क़िबला मोमिन भाई, होता यह है कि अगर कोई बात हो, कोई कादियानी कोई बात करे, वहाँ पर हमारे मुसलमान बोर्ड लगाते हैं और कादियानी से पूछते हैं कि देखो ये तुम्हारे कादियानी ने बात की, उनसे मशवरा लेते हैं, ये मौलवी मौजूद है, इनसे पूछ लीजिए, और भी मौजूद है, उनसे पूछ लीजिए। वो अपना जो भी है वो वहाँ करते हैं। यही कादियानी कर रहे हैं। मैं इनका हक तो नहीं छीन सकता, नहीं तुम लोग ये नहीं देखिए पूछ सकते। पीर साहब, जिस वक्त ये जब उन्होंने गालियां पूछा, देती हैं, थोड़ी जिस वक्त थोड़ी ये बात सुन गंद लीजिए, बोलती थोड़ी हैं, बात जिस वक्त ये बात पूरी होने तस्वीरें दीजिए। लटकाते हैं, जिस वक्त ये उमर अब्बास उलमा साहबा, को, उनकी फैमिली को मेरी टारगेट बात करते पूरी नहीं हैं, तो हुई, कादियानियों ने मेरी कानों बात में पूरी उंगलियां नहीं ली हुई, होती हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी यही अमल जो कादियानी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त आप नहीं दे रहे मेरे मुसलमान भाई, वही अमर हमारे बरोड़ों में होता है। जब कादियानी कोई गलत हरकत कर लेता है
कोई भी आ जाता है हमारे रोड पे कादियानी, हम पूछते हैं उनसे, वो अपना मशवरा देते हैं, सही देते हैं, गलत देते हैं, लेकिन हम पूछते तो हैं। हमें अगर हक है, उनको हक नहीं है, आप उनको मना करो, मैं तो मना नहीं कर सकता। रही बात यहाँ जो मैंने बात की, उसके बाद मुझे फ़ोन किया अली भाई ने कि आप हमारे रोड पे आए तो थोड़ी सी बात करनी है इस मसले पे। मैंने कहा क्यों? कि कुछ बात करनी है। मैंने कहा आमिर नज़ीर है, फ़ोन पे बात हुई, कहाँ है? मैंने कहा जब आमिर नज़ीर है मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे दिल से आमिर नज़ीर जो है वो निकल चुका है, मर चुका है, मर गया है। और मैं ये समझता हूँ कि आमिर नज़ीर भी समझ ले कि आस्कानी मर चुका है, तो उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे बदबू आती है, बदबू। तो आस्कानी मैं साहब, उनकी ये मौजूदगी आपका में मसला है, ये सुन तो आपस में निपटाए सुन ना, तो ले इस ब्रॉड पे आप जो सुन तो बैठे हैं लें इधर। सुन तो लें भाई, जी सुन तो लें, साहब मेरी बात सुने, आप सुन बात तो करें लें। चौकों में, आप हाँ, बात करें बात स्पीकर लगा मेरी लगा बात कर। पूरे होने दीजिए, आप मेरी बात गालियां पूरी होने थे दीजिए, पूरा पूरा साल, आप गंदी मेरी बात, मूवियां लगाए भाषण ब्रॉडों पर पूरे होने आकर, दीजिए। तो आपसे बात। उमर बाप साहिबा, भाषण मेरी पूरी होने दीजिए। मैंने कहा कि उसकी आवाज में सुनना नहीं चाहता, मेरे लिए वो मर चुका है। अगर वो रोड पे है, मैं वहां आना नहीं चाहता, तूकना भी नहीं चाहता उस साइड पे, ये मैंने साफ कह दिया। कहा हम उसको उतार देंगे, आओगे? मैंने कहा फिर आऊंगा, बात करनी तो ठीक है, आ जाऊंगा। तो गालिबन उन्होंने आमिर से बात की कि उन्होंने कहा ठीक है मैं उतर जाता हूँ, गालिबन ऐसा ही हुआ होगा। मैं चला गया, आमिर नहीं थे, तो उन्होंने बात 2 हदीसें पेश की जिसमें कपड़े निकालने की बात है। कहा ये हदीस देख ले। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, इसमें निकालने की बात है। फिर उन्होंने कहा कि देखो फिर आप ये क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा वो हदीस जो मैंने बयान की है उसमें क्या बात है, उसमें तो निकालने की बात नहीं है। अब हजरत अली की कौन सी बात है, ये निकालने वाली बात है या फेंकने वाली बात है, ये बताइए। कहते नहीं इसमें खुद हजरत अली बयान कर रहे हैं। मैंने कहा बता दीजिए। उसमें यह कि काला, एक साहबी बता रहे हैं कि हजरत अली ने कहा ये कि मुझे और 2 और सहाबी, नबी ने हम तीनों को भेजा। हजरत अली ने जो कुछ बताया वो बयान कर रहे हैं कि यूं हुआ है। एक सहाबी बता रहे हैं जिनको मैं पेश कर रहा हूं, उसमें यह है कि काला समेतु, मैंने सुना। मैं जो पेश कर रहा हूं जिसमें नुल्क़ियन्ना है, समेतु, मैंने सुना। सहाबी बता रहे मैंने सुना हजरत अली ये कह रहे थे। दूसरा सहाबी ये कह रहे काला, हजरत अली ने ये कहा। तो इन दोनों का एक ही मकसद है। मैं अगर ये कहूं कि उम्र रबाब साहिबा से मैंने ये सुना और किस्सा बता दूं, यानी ये किस्सा मैंने खुद सुना है उम्र रबाब साहिबा से जो मैं बयान कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि उम्र रबाब साहिबा फरमा रही थी, दोनों का एक ही बात है। तो काला और समेतों पे उन्होंने थोड़ा सा हमसे बहस की। मैंने कहा ये दोनों एक ही बात हैं। अब थोड़ा सा वो जो नचनिया है, ज़िया शर्तिया, शर्त लगा लगा के जो है वो नाचता है, तो वो थोड़ा सा मुझ पे बिगड़ गए। वो मैं उसके जो है नौकर तो नहीं हूँ, मुझ पे बिगड़े। जब वो बिगड़ गए मैं भी बिगड़ गया। मैंने कहा खामोश, अपने हुदूद को जानो। असल में उनको एक दुख है। मैंने एक जो फतवा है, जो लजना दायमा का फतवा है, मैंने वो फतवा बयान किया था। वो कादियानियों का उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनमें शायद उनका कोई मौक़िफ़ था जो उनके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ गया। अब वो बात को बार बार वो दुख उसको है, वो पेश करा, तुमने पहले भी ऐसा किया। मैंने कहा मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ, हक़ की बात करता हूँ। अब वो आपके हक़ में जा रहा है या आपको नुकसान हो रहा है, आपकी ज़ाती हक़ और नुकसान का फ़ायदे का मैं वो नहीं हूँ। जो मुझे सच लगा मैंने वो बात की, तुम्हारे सामने पेश किया। आप उन उलमा को ना मानो, मैं मानता हूँ। मैं एक नचनिया को नहीं मानता, तेरा तो काम है नाचना। इतनी सी बात है। इस पे वो बिगड़ गए और उन्होंने कहा ये देखो आस्कानी को फिर जो है दौरा पड़ गया है। भाई मुझे क्या दौरा पड़ा है? मैं जिस ब्रोड पे भी जाऊं, मुझे जो भी बात कोई पूछे, मैं अपनी मर्जी से जवाब देता हूं। मैं तेरा नाम नहीं लेता, मैं किसी का नाम नहीं लेता। इतनी सी बात है। उनको दुख है, वो ये चाहते हैं कि मैं ये कहूं कि हजरत अली ने कहा कि मैं तेरे कपड़े उतार दूंगा। नहीं, बल्कि हदीस होते हैं, रिवायतें होती हैं, बिल लफ्ज़ भी होती हैं और बिल मानी भी होती हैं। जब आपको अलग अलग जो है लफ्ज़ मिल रहे हैं तो उसको कहा जाएगा कि ये बिल मानी है, बिल लफ्ज़ नहीं है।
اس سے ہم یہی ایسے تدبیر کریں گے جس میں ایک اچھی بات سامنے آ جائے، اور اچھی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ تفتیش کرنا چاہتے تھے، کسی کے کپڑے اتارنا نہیں چاہتے تھے. یہ ایک اس کی اچھی تعویل ہے، میں اس پر جاذب ہوں اور میں یہی مانتا ہوں. تمہیں کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے کپڑے نکالنے کی، ٹھیک ہے کرو، پھر بھگتو، پھر لوگ تمہیں کہیں گے، جوتا تو ماریں گے، پھر برداشت کرو. پھر یہ کیوں چلاتے ہو کہ آسکانی تم نے یہ کیوں بات کی، میں کیوں کہوں کپڑا نکالنا سنت ہے؟ تو نچنیا کہیں کا، میں بھی یہ کہوں، تم کہو، میں کیوں کہوں؟ یہ ہے وہ مکمل بات علامہ قبلہ مومن بھائی ہیومنٹی صاحب. اب آپ بولیں. جی پیر صاحب، انہوں نے مجھے نیچے اتار دیا تھا، ان کو بولیں کہ مجھے نیچے نہ اتاریں، میں نے کوئی گالی نیچے آپ نہیں، جو اگر آپ موضوع بری ہے اس بات پہ مت کریں نا، ہاں کوئی اور بات کریں بات اس کرو پہ. گے تو تمہیں اتار دیں گے نا قبلہ. جو موضوع ہے اس میں پہ نے بات کوئی کریں. بھی گالی دی ہے تو بتائیں. اچھا اب نہیں، بات آپ یہ تو ہے گالی پیر دیتے نہیں. صاحب، پیر صاحب ایک ہفتے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موقف ٹھیک ہے، اچانک آپ کی وہ علمی بات ہوئی ہے ضیاء بھائی سے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کی چھترول کی ہے اور اچانک سے ہی آپ کا موقف چینج ہو گیا. کیا یہ آپ اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہے، بغض امر میں نہیں کر رہے؟ یہ آپ نے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو مہربانی کریں پیر صاحب، وہی ابھی اپنا بات تو موقف سنیے، رکھیں جو پچھلا اس کا تھا. جواب یہاں سنیے بولے نا. پہلے میں جھوٹ بولتا ہوں اور جھوٹے پر قبلہ اللہ جواب کی تو لعنت سنیے. ہوتی ہے. قبلہ وہ تو آپ سب پہ ہوگی انشاءاللہ. بات یہ کہ میرا موقف تو وہی شروع کا ہے. میں نے یہ کہا ہے، نہیں، آپ آج نے بھی یہ کہہ پچھلے رہا ہوں. ہفتے کون سا موقف رکھا ہے؟ یہ سن لیجئے، میرا شروع سے یہی موقف تھا کہ عامر نے کوئی گستاخی حضرت علی کے بارے میں نہیں کی ہے، بلکہ جو الفاظ ادا کیے ہیں ایک خاتون کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آج بھی میں نے یہی کہا، ابھی بھی میرا وہی موقف ہے. ابھی جو حدیث کے متعلق آپ بتا رہے ہیں ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے پہلے آپ نے ایسے کچھ، نہیں آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے ایک حدیث کی بات کی ہے جس میں نلقینہ آیا قبلہ، اس میں کپڑے پھینکنے کی بات ہے، نکالنے کی بات نہیں ہے. جی پیر صاحب کبھی آپ کا، میرا خیال ہے ادھر گرمی کا ٹمپریچر کیا ہے آپ کی طرف؟ ادھر گرمی کا ٹیمپریچر ابھی تھوڑا سا زیادہ ہے. کیا ہو گیا؟ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، گرمی تھوڑا زیادہ زیادہ ہو گیا ہے تو میرا خیال تھوڑا ہے سا ایٹم بم بھی گرے ہیں ادھر. چلو زیادہ کرو تھوڑا جا سا کے نا، اب پانی پیو جا کے، اتنا ہی تھوڑا کافی ہے. زیادہ ہو گیا ہے، گرمی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. اللہ کو جان دینی ہے نہیں دینی؟ کچھ مریض ہوتے ہیں خالی دوائی سے ان کو شفا مل جاتی ہے، کچھ کو ٹیکا بھی لگانا پڑتا ہے. اللہ کو جان دینی ہے نہیں دینی ہے؟ بھائی اللہ کو تو جان دینی ہے، لیکن گرمی بھی ہوتی ہے. بھائی میرا موقف وہی ہے جو شروع سے تھا. یہاں کوئی گستاخی حضرت علی کے لیے نہیں، لیکن جس طرح سے جس جوش میں بات کر رہے تھے عامر نذیر صاحب، وہ ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے میں مطابقت نہیں رکھتا ان کے ساتھ. لیکن کوئی کہے کہ گستاخی کی ہے، اس کو بھی میں نہیں مانتا. اتنی سی بات ہے. دیکھیں یہ آپ کا موقف ہے، ہاں، لیکن میرا اتنا ہی موقف وصیت جتنا میں نے پڑھا یا جتنا میں نے جانا، حدیث اس بات کو کہتی ہیں، سنت اس بات کو کہتی ہے جو طریق اپنایا جائے، اور قول اس بات کو کہتے ہیں جو آپ نے حکم دیا ہو. آپ کے اقوال زرعی جس کو ہم بولتے ہیں، یا اقوال بولتے ہیں، یا قول کہتی ہے، تو قول وہ چیز ہوتی ہے جس کا بیان ہو. اب ایک چیز جو واقعہ ہوا ایک عورت کے ساتھ، تو کیا اس کی شرح میں حضرت علی نے کوئی قول بیان کیے کہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے کرے، ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی حکم ہے؟ یہ علامہ ہیومنٹی صاحب مومن صاحب بتائیں گے. مومن صاحب بتا دیجئے. جی میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہے ہیں تمہارے یہ علامہ صاحب پہلے جو ہے پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے علامہ ہیں، انہیں تم نے اللہ کو جان نہیں دینی ہے، تاکہ تم نے ہمیں اللہ پتہ کو جان چلے کہ نہیں یہ دینی ہے. واقعی علامہ ہیں. اب جان میں دینا ہے بات نہیں کروں، دینا اللہ میں کو؟ کسی جاہل بندے کے ساتھ بات نہیں کر سکتی.
अगर ये वाकई अलामा है तो ये लेके दुआ कुनूत सुनाई यहाँ पर। ये अल्लामा है या और ये मोमिन भी पीर है। साहब, उमा साहब आप अपनी ब्राड लगाया करें, वहाँ माशाल्लाह आप अच्छी इल्मी बात कर क्यों? लेती हैं। तुम्हारी आप बात क्यों क्यों इन माने? जहलों के दरमियान बैठे तुम्हारी ये बात क्यों माने? आप अपनी अपने ब्राड क्यों लाइव लगाए? लगाया करें मर्दइयों के पास। क्यों? देखें आप एक इल्मी शख्सियत है, हाँ आपके साथ हमारे अख्तिलाफात हैं, चूँकि आप मिर्ज़ा साहब पर बात करती हैं तो आप अपनी लाइव पर किया करें ना। मर्दइयों के पास बैठेंगी जब आप क्यों आए हैं मर्जियों के पास? है आपकी जो जिंदगी आप गुजरे क्यों आए हैं मर्जियों के पास? आपको हक है। आप भाग भाग के उनकी कहना मर्जियों की या फिर ब्रॉड भी पे ये जाती है जिंदगी क्यों? हम सुनना चाहते हैं कोई भी। मैंने कहा कि आप भाग भाग के मर्जियों की ब्रॉड पे जाती हैं, आप भाग भाग पे कभी फेवरेट 49 के पास, कभी किसी के पास, कभी आप अभी भी आप मर्जियों की ब्रॉड पे आए हुए हैं क्यों? म्यूट कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि आप साहब, अपनी ब्रॉड में बैठे अल्लामा साहब गाली देने के मर्जियों की लिए ब्रॉड आए पे क्यों आए हैं। हैं? अल्लामा साहब गाली देने के लिए आए, आप गाली नहीं देते। आप मैंने बुरे हो अगर जाएंगे। गाली दी तो आपको अल्लाह गाली को दी तो जान नहीं देना होता है। मैं गाली अल्लाह को देने जान नहीं नहीं देना आता। होता है। गर्मी तुम्हें लगती नहीं है, गाली नहीं देते। अल्लाह को जान नहीं म्यूट देना। कर रहे हैं, अब म्यूट कर रहे हैं। अगर म्यूट करना है तो फिर अल्लामा क्या- साहब गर्मी आप आते हैं गाली देते हैं, तो अल्लाह को जान देता है कि गर्मी नहीं लगता है तुम्हें। हमें तो गर्मी नहीं लगती। अच्छा आप बात तो करने देना। मुसलमान चुप कर। जी यहाँ पर मैं आई हूँ, मुसलमान है, जी बिल्कुल ये एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह को जान देना इसने अल्लाह को जान अब देना। अभी मैं आके बता इसमें जी मैं इसलिए किसी मुसलमान ब्रॉड पे नहीं जाती कि कोई ब्रॉड ऐसी रह नहीं गई जिन्होंने तोमत ना अरे लगाई आमिर हो, वजीर। जिन्होंने गलाजत ना बोली हो, जिन्होंने गालियां ना दी हो, कोई ऐसी ब्रॉड रह नहीं गई, इसलिए मैं वहां नहीं जाती। मुसलमान आ गया। आप मुसलमान हो, आप अपने ब्रांड लगाया करें मुसलमान। हाँ जी मैं मुसलमान नहीं हूँ। ए पक्के अच्छे मुसलमान है, म्यूट क्यों कर रहे हो? मुझे मजा आ रहा है मुसलमान। ओ भाई एक मिनट जज साहब, एक मिनट जज साहब देखें उसको यहाँ आए हैं, यहाँ हमारे सामने अल्लाह को जान दे के जाएंगे। अल्लाह को जान देने दे दो, जल्दी दे दो। अच्छे म्यूट ना मुसलमान करें। है, मुसलमान म्यूट ना करें, बात करने दें। मैंने तो एक मिनट अफगानी तू सबसे बड़ा मुनाफिक है। उधर हाँ देखा गालियां पड़ उम्मे को गालियां पड़ी थी, बाद में तू उसका लल्ला अपने मुंह में इनको उसका लल्ला उसका मुंह में डाला हुआ है। ना करो यार, गंदी बातें ना करो मुसलमान। गंदी बातें क्या ये मुसलमान आ गया है। ये मुनाफिक है, तू मुनाफिक है। ठीक है, उस वक्त गालियां पड़ी थी तो बोला क्यों सही नहीं? बात है। उस वक्त बोला क्यों नहीं? क्या बोलता? आमिर भाई उसके बाद दोस्ती करके आ गया। उम्मी को तुमने खुद ही जानबूझ के बेइज्जत करवाया है, ठीक है? मैंने क्या किया? पूरा तो उधर बैठा जब दोस्ती की करके आया था, मुझे ये बताओ। उम्मी साहब आपको गालियां पड़ी हैं, इस बात उनके कौन से दोस्ती? सुलह सफाई कौन से करके आ गया, ठीक है? मुनाफिक कौन का सी बंदा दोस्ती की है? है ये, अल्लाह को सबसे जान बड़ा देना था, बस मुनाफिक जान है। दे इसकी मुंह पे इतनी लानत है ना, जो मुनाफिकत की वजह से कोई हिसाब नहीं है। देखा ये पक्का मुसलमान है। एक मिनट अफगानी साहब, यार तू अफगानी साहब एक मिनट, ये मुसलमान है। ये कैसे कैसे मुसलमान आ रहे हैं? और मैं ये निदान नजर ये देखे अस्कानी से कैसे कैसे मुसलमान आ रहे, कैसे 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 मुसलमान आ रहे। भाई ये अल्लामा साहब जान देने आए हुए थे, अल्लाह को आपने जान देने नहीं दिया। वो बैठा हुआ है ऊपर, पीर साहब बात करे, हमने कौन सा मना किया उसको? नहीं, वो जो बादशाह जान दे है के चले जाओ, वो बादशाह ऑलरेडी जान दे के अल्लाह को चले जाओ। देखें म्यूट करते हैं, ये पीर साहब बात ही नहीं करने देते। मैं तो कोई गाली भी नहीं दे रहा। तो आप तुम तो मुसलमान हो ना?
तीन मुसलमान आए हैं। ये देखें कुफारे मक्का की तरह कहते हैं लगा रहे हैं। मैं तो अच्छी बात करने आया हूँ इधर। आप मुसलमान हो? क्या अच्छी बात करने आए हो? बताओ, अल्लाह को जान देनी है, गर्मी है, यही अच्छी बात है तुम्हारी? पीर साहब उधर कितनी गर्मी है? पीर साहब उधर कितनी गर्मी है? पीर साहब एसी लगवा के देना आपने। पीर साहब एसी लगवा। ये मुसलमान आया था पीर साहब, मुसलमान। पीर साहब उधर कितनी गर्मी है? एसी को आपे बच गया। दूसरा आया रंगी की औलादो मुसलमान मुसलमान आ गया, मुसलमान गाली बात मुसलमान। कोई ना करे, मैं करना मुसलमान, मैं म्यूट करना मुसलमान। मुसलमान ओए आज कोई पागल अपना आ गया, ये नहीं गाली देता, ये नहीं अच्छा बंदा है। नहीं, पागल खाने का दरवाजा खुला रह गया, सारे सकते हो तो करो, नहीं तो यार ये क्या कभी मार देते हो, बात ही नहीं करने देते आप। पीर साहब उधर कितनी गर्मी पड़ रही है आप मुसलमान। यार खान साहब बात करने देना, अगर आपने ब्रांड लगाई हुई है तो बात करने ब्रांड तो हमारी मर्जी है, हम अपनी ब्रांड चलाएंगे, तुम्हारे कहने पे चलाएंगे। नहीं देखे मिर्जा साहब की तालीम मुसलमान हो आप, मुसलमान हो की तालीम ना पेश करें हमें। पीर साहब उधर कितनी गर्मी पड़ रही है मुसलमान। तू इधर पीर साहब ने एसी लवा के देना, देखो कितना मौत मेरा आया, कहता तुसा पहला वो की बयान देता उड़ के देता। ओए तू मुसलमान है? ओए होए होए यार थले लाओ मेरा। आप करने दे, हमें नहीं कर। हाँ सारी रुकन दे आप, तुसी करो बात, इन्ना चुको दफा करो। म्यूट लाओ इरफान जट साहब, म्यूट लाओ। 3 मुसलमान आए थे, पहले आए थे मिर्जा उस्मान बादशाह मुसलमान थे, तीसरा हम्यूटी मुसलमान। माशाल्लाह, ये किसी पागल खाने का बुआ खुला रह गया जी। मेरे बाप साहब आप बात कर रही थी, सॉरी उधर मुसलमान आ गए थे, इसलिए करिए बात आप। देखो कोई हो मुसलमान आया, कोई ना मुसलमान। मेरे बाप साहब आप बात कर रही थी, कीजिए, क्योंकि वो नीचे बहुत सारे मुसलमान एकदम आ गए थे। यार नाक फिर आ गया जे। ये पेशा में कितनी गर्मी पड़ रही है मुसलमान। बहुत शुक्रिया आप यहाँ से गई है डॉक्टर शूट ला जा उबे सामान डाल, तेरा मुसलमानी निकल गई अज। मुसलमान अब मुसलमान फिर आ गया। गाला ना कटी यार, गाला वहाँ पर बात करें पीर साहब, आप अपनी बराडान करें तो। और यार रहन दे सू, रहन दे सैफी, रहन दे सू, गल करन दे मुसलमान। ओए जिथे गाल कढे उथे थल्ले सुटना, उंज ना थल्ले सुटो, उंजे नु कर लेंगे। आज मुसलमान खुले ने, एक बुआ खुला रह गया, सारे मुसलमान इत्थे भज जाए ने। आ गया जी यार। पीर साहब लगे ना। पीर साहब आप सुन रहे हैं? हाँ मुसलमान सुन रहे हैं। पीर साहब कबला मैं सुन रहा हूँ, कबला सुन रहा हूँ। जी पीर साहब बात ये है कि देखें, आपको ज़ाती तौर पर मसाइल हो सकते हैं, ज़ाती अना के मसाइल है, मुझे पता है मुसलमानों के मतलब सब कुछ, लेकिन आप अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला का वास्ता सही लफ्ज़ इस्तेमाल करो मुसलमान। हाँ सही लफ्ज़ इस्तेमाल करो। गल कर लेंदे पूरी। पीर साहब लैन आया तो शायद ना उसको टोको, उसकी वोकैबुलरी खत्म हो जाती है, ना टोको। इन्हें गल करन दो पीर साहब ने पूरी। तो पीर साहब आप एक इल्मी शख्स हैं, ठीक है, आपके थोड़े काम वगैरह आगे पीछे हो गए हैं, गर्मी की वजह से आप
जो भी कर रहे हैं आपका दिमाग आगे पीछे वो है कादियानियों की तरह, तो आप ऐसा करें, आप अपनी ब्राड़ लगाएं, हम आपसे मुस्तफीद होंगे। इन काफरों के दरमियान बैठकर हमें ना बर्दाश्त करें मुसलमानों को, ठीक है? आपको नहीं, मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को। एक मिनट बात अल्लामा साहब की पूरे होने दीजिए, मैं तत्ता नहीं हूँ, जवाब दे दूंगा जी। जी आपको जो भी मसला है, आपको जो भी मसाइल है, हम सुनेंगे। हमें आपकी ब्राड से भी आवाज़ आ जाएगी और मर्दई भी वहाँ पहुँच जाएंगे। ये ना समझे कि वो वहाँ नहीं पहुँचेंगे, ठीक है? तो आप अपनी ब्राड लगाएं, वहाँ पर इल्म बांटें जो बांटना है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये अपनी रात को ना, जो रात के मसाइल हैं, इन्हें आगे पीछे कर दे। अगर आपको किसी से मसला है तो आप उससे ना बात करें ना। चलो जवाब बस करो, नहीं लम्मा जवाब, पीर साहब जवाब दो, इतना लम्मा तकरीर सुनने की जरूरत नहीं, चुप कर जाओ ना। अच्छा आप सुन ले अभी, जी अब सुन ले। देखें भाई, मैं आपका तनख्वाह ख्वार जो है गुलाम नहीं हूँ कि ये करो उधर जाओ ऐसा करो। ओके हाँ, मैं आपका तनख्वाह ख्वार गुलाम तो नहीं हूँ ना मेरे भाई। आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। आप मुझे ये कह रहे हैं कि अपना ब्रोड खोलें, आप उधर आएंगे। मेरे भाई, मेरा जब दिल करेगा मैं अपना ब्रोड खोलूँगा। फिलहाल आप ब्रोड खोलें, मैं आपके ब्रोड पे आता हूँ, दोनों मुसलमान बात कर लेंगे। अब आपका ब्रोड नहीं है, किसी और के ब्रोड पे अगर मैं चला जाऊँगा तो आप मेरा पीछा ना करें, आप ना आए। आप मुसलमान हैं, आप ना आए, कभी भी मेरा पीछा करते हुए ना आए। मुझे तो जाने दें, मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ ना, जहाँ चाहता हूँ जाता हूँ और अपनी बात कर लेता हूँ। मुझे अल्लाह जानता है, जिसको आपने जान देना है मैंने जान देना है। आप तो जान देने हवाए होते, आपको तो यहाँ जान दे के जाना चाहिए था, लेकिन आप जान नहीं दे रहे और आप पता नहीं कितनी ज़िंदगी और लेना चाहते हैं। जान दे तो चले जाओ। अब भाई मेरे, मुझे मेरा पीछा मत करें, मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा। मुझसे कोई सवाल करता है, उसका सही जवाब जो मुझे लग रहा है मैं दूंगा। आप कहते हैं ये भी ना करो, ये तो ज़्यादती है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ये नहीं करता। अल्लाह गवाह है, कोई दिली नाराज़गी या कोई ज़ाती जंग मेरा नहीं है किसी के साथ। इतनी सी बात है, बहुत सारी बातें होती हैं। मुसलमान जो है कोई गलती कर जाता है, वो मुसलमान के बारे में कोई पूछ लेता है। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ये बात यूँ है, जिस तरह से अल्लामा क्या नाम है इनका, मुफ्ती साहब है ना, उन्होंने अपने जोश खिताबत में एक गलती की थी, वो सब बात कर रहे थे, मैंने भी अपना मशवरा दे दिया। आप काफरों के दरमियान में बैठकर ये मेरा भाषण, तो आप कौन से मोमिनों के दरमियान बैठे हुए? आप भी तो वही बैठे इल्जाम लगाना है तो होस्ट टू होस्ट बात कर लें उनसे। तो आप अपना म्यूट रोड खोलिए, हम बात कर लेते हैं आपसे। हमने कब कहा आपसे बात नहीं करेंगे? आप आएंगे उधर बात करेंगे जी, आप आएंगे उधर बात करेंगे उनसे जो आपको इख्तिलाफ है। कहाँ बताइए? जिस बराड़ पर कहते हो मैं उधर कहता हूँ। आपकी बराड़ पे आऊंगा। एक शख्स नहीं चाहिए, आमिर नजीर, वो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको मुसलमान पसंद नहीं है। बात करनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए। ये क्या चाहिए नहीं, उनको भी आप चाहिए। बात ये है कि आप गिबत भी तो ना करें, वो इधर मौजूद नहीं है। मुसलमान कहना गिबत है? हम नहीं होते, वो बात कर रहे हैं, गिबत नहीं है। अभी वो गालियां दे रहे थे, वो गिबत नहीं है। वो नचनिया की औलाद हो जो गिबत कर रहा था। देखिए, एक साथ मिलकर अगर वो नचनिया की औलाद मुझे बुरा भला कह रहा था, उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त तुम मुता कर रहे थे। देखिए पीर साहब, अगर आप वाकई भाई सुनो, आप मोमिन भाई हैं, तो आप मुता करते हैं। मुझे ये बताइए, अल्लाह की रजा के लिए तुमने जान देनी है, अल्लाह के रजा के लिए, जब वहां पर वो नचनिया की औलाद मेरे खिलाफ अपने से बकबक कर रहा था, उस वक्त